وہ آج 5 سال بعد لندن سے واپس آیا تھا۔ میرب رات کے 2 بجے کچن میں بریانی کھانے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی اذلان خانزادہ کو دیکھا تو ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ شور بھی نہیں مچا سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ دیکھو چور جی، تم جو کوئی بھی ہو نا، خود اس گھر کی ملازمہ ہوں میں، میرے پاس پیسے ویسے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور کالج سے چھٹیاں تھیں، اس لیے وہ یہاں آئی تھی۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو یہ چین ہی مجھے دے دو۔ میرب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نوکر ہو کر اتنی موٹی گولڈ کی چین، جبکہ وہ اس صدمے سے گرنے ہی والی تھی کیونکہ اسے یہ چین اپنی ماں کی اتنی منتیں کرنے کے بعد ملی تھی۔ کچن میں ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز ہوئی تو وہ جو پانی پینے کے لیے ابھی اپنے کمرے سے باہر ہی نکلا تھا، کچن کی طرف مڑا۔ کون ہے جہاں؟ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا اور تبھی اسے میاؤں کی آواز سنائی دی۔ اسے لگا کہ واقعی میں بلی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے ایک بار پھر سے اسے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ دبے قدم چلتا ہوا کچن میں داخل ہوا اور جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا، دبلی پتلی جیسا چہرہ رکھنے والی وہ لڑکی نیچے فرش پر بیٹھی بریانی کی پلیٹ اٹھائی مزے سے کھا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اسے غصہ آیا تھا۔ یہ لڑکی ابھی تک نہیں سوئی تھی، ویسے ہی چوروں کی طرح کچن میں گھس کر کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ چور بھائی، یہاں کیا لینے آئے ہیں آپ؟ میں تو خود اس گھر کی نوکرانی ہوں، اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا تھا، جبکہ سامنے کھڑا اذلان اپنی ہنسی کو چھپائے چہرے پر غصہ طاری کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے نہیں پہچان پائی تھی۔ نوکر چور کی طرح کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے غصے سے کہا تھا۔ ارے جو اور بھائی کیا بتاؤں آپ کو، میری مالکن پر بہت غصے والی ہے۔ آپ بھی یہاں سے چلے جائیں ورنہ وہ ابھی کے ابھی گن اٹھا کر آپ کو مار دے گی۔ مجھے تو وہ کھانا بھی نہیں دیتے، پورے دن سے بھوکی تھی اس لیے کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے مصنوعی جھوٹ بولا تھا اور مصنوعی ایکٹنگ کرتے ہوئے وہ اذلان کو اپنی معصوم سی صورت کا گرویدہ بنا گئی تھی۔ اچھا، اگر تم یہاں پر خود ہی نوکرانی ہو تو پھر تمہارے گلے میں اتنی موٹی سونے کی چین کیا کر رہی ہے؟ وہ آگے بڑھتا ہوا اس کے قریب ہو کر بولا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن پیچھے شیلف تھا، وہ نہیں ہٹ پا رہی تھی۔ اس کا گلا سوکھنے لگا تھا اور آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ ملازمہ ہونے کی اداکاری کرتے کرتے اچانک ہی وہ اداکاری کہیں کھو گئی تھی۔ یہی چین مجھے دے دو، میں چلا جاؤں گا، وہ ایک ادا سے بولا تھا جبکہ اس کی نظر اب اس کی چین پر تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی چین کو چھوا تھا اور ایک لمحے میں اس کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب اس نے اپنی ماں سے یہ چین لینے کے لیے ضد کی تھی اور پھر ٹھیک 6 دن بعد وہ یہی چین لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نہیں چور بھائی، یہ میری بہت خاص چین ہے، یہ میری ماں نے مجھے دی تھی، پلیز پلیز مجھ سے یہ نہ لے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے یہ کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت اذلان کا دل کھینچ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس گھر کا مالک ہے۔ وہ مزید آگے بڑھا۔ اب ان دونوں کے درمیان بس 2 انچ کا فاصلہ تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے کو دیوار میں گھسی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے میں پہنی ہوئی چین کو چھو گیا تھا اور اس کا سانس وہیں کا وہیں اٹک گیا تھا۔ پیچھے ہٹو مجھ سے، ہاتھ مت لگانا مجھے۔ اب کی بار اسے غصہ آیا تھا کیونکہ اذلان اس کے قریب ہوتا ہوا اس کی گردن میں پہنی چین پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ خبردار اگر مجھے دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے بولی اور تبھی وہ اپنے ہونٹوں پر ایک شوق مسکراہٹ لیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ ٹھیک ہے، چین نہیں دے سکتی تو پھر اپنے آپ کو تو میرے حوالے کر سکتی ہو نا؟ یہ کہتا ہوا وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ دیکھو میں شور مچا دوں گی، میری خالہ اندر کمرے میں سو رہی ہے، میں نے ایک آواز لگائی وہ فوراً اٹھ کر آ جائیں گے اور تمہیں گولی مار دیں گی۔ وہ غصے سے چلائی تھی جبکہ اب وہ اسے چلانے کا موقع نہ دیتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ میرب کا سانس وہیں کا وہیں اٹک گیا تھا اور وہ تھا کہ اس کے ہونٹوں کو اپنے دسترس میں لیے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا اور وہ تھی کہ اس کی مضبوط گرفت سے آزاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ اسے دور ہٹا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے غصے سے کچھ کہتی، وہ پہلے ہی اس کے چہرے پر آئے بالوں کو دور ہٹاتے ہوئے کہنے لگا، بس بہت شکریہ، مجھے چین نہیں چاہیے، مجھے جو چاہیے تھا وہ میں لے چکا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ مسکراتے ہوئے دور ہٹا۔ امید ہے تمہارا پیٹ بھی بھر گیا ہوگا۔ وہ بریانی کی پلیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ایک بار پھر سے صحن کی بتی بند ہو گئی تھی اور جب وہ باہر نکلی تو اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی بنا پلیٹ واپس رکھے اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور ساری رات اس کی ایک پل بھی آنکھ نہیں لگی تھی۔ ساری رات وہ ادھر ادھر کروٹیں بدلتی رہی اور پھر نہ جانے کب اور کس وقت اسے نیند آئی یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ ٹھیک 7 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کے دماغ میں وہی رات والا واقعہ چلنے لگا تھا۔
वो एक दम उठ बैठी थी। खुदा का शुक्र है कि मेरे पास कोई नहीं। उसने सुकून का सांस लिया था, लेकिन अगले ही लम्हे जब उसने अपनी ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने आप को देखा तो उसे हैरत हुई। वो जल्दी से उठकर आईने के सामने आई। उसके होंठ पर कट लगा हुआ था, निशान पड़ चुका था। वो हैरत से कभी अपना होंठ देखती तो कभी आईने की जानब देखती। उसे समझ नहीं आ रही थी, रात सोई थी तो बिल्कुल ठीक थी। न जाने अब खाला जान मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी। खुदा बेड़ा गर्क करे उस चोर का। वो गुस्से से बिलखती रह गई और फिर कुछ लम्हे अपने आप को देखने के बाद वो गुस्से से वॉशरूम में घुस गई। बिल्कुल फ्रेश होने के बाद वो नीचे डाइनिंग टेबल पर आई। सलाम करने के बाद वो जैसे ही अपनी चेयर घसीटने लगी, उसकी नज़र सामने बैठे शख्स पर पड़ी। उसका हाथ वहीं का वहीं साकत हुआ। चोर बेगैरत इंसान, तुम यहाँ! वो एकदम से गला फाड़ कर चिल्लाई थी और सामने बैठा शख्स ब्रेड पर छुरी से मक्खन लगाते खुश मिजाज निगाहों से उसे देख रहा था। खाला, आप जानते हैं ये चोर है, रात को ये किचन में घुस आया था, ये हमारे घर में था, ये चोर है। वो एकदम से चिल्लाने लगी थी। चिल्लाओ मत, बैठ जाओ आराम से, वो पुरसकून लहजे में कहता ब्रेड पर दूसरा पीस रखता हुआ उसे दांतों तले दबा गया था और उसे वो बिल्कुल जहर लगा था। खाला आराम से बैठी उसे नाश्ता करवा रही थी। वो हैरत ज़दा कभी सामने पीछे बैठे शख्स को देखती तो कभी खाला को देखती। खाला जान हैरत से उसका मुंह तक रही थी। मीरब, ये कहाँ से तुम्हें चोर लग रहा है? माशाल्लाह से देखो तो इतना गबरू जवान है। अतिया खाला मुस्कुराते हुए अपने बेटे की जानब देख रही थी, जबकि उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था। आंटी, ये चोर नहीं है तो फिर क्या है? वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। क्या है? अजलान। अजलान है, मेरा बेटा है। ये रात तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। ये बताए बगैर आया था, रात को लंदन से आया है। अब आ गई तो मैं समझ गई। अब आराम से बैठ जाओ और नाश्ता करो। और ये तुम्हारे होंठ पर क्या हुआ है? खाला जान उसे तसल्ली से बताती हुई अचानक ही उसके होंठ पर बने छोटे से निशान पर रुक गई थी। कुछ नहीं आंटी, वो मेरे ख्याल से चोंटी ने काट लिया था। उसने अपने होंठ को छुपाते हुए अपना हाथ उस पर रख लिया था। अब की बार वो शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई थी। उसकी शक्ल उस वक्त ऐसी हो रही थी जैसे उस पर ठंडा पानी पड़ गया हो। उसने नज़र उठाकर उस शख्स की जानिब देखा। चोर निगाहों से वो उसकी जानिब ही देख रहा था। उसके चेहरे पर खिलती हुई मुस्कुराहट इस बात की वजाहत कर रही थी कि वो उसकी इस हालत पर इंजॉय कर रहा है। तो ये अज़लान था। उसने शर्मिंदा होते हुए सोचा। अब इसमें पलकें उठाकर उस शख्स को देखने की हिम्मत नहीं बची थी। वो शख्स उसके होंठों पर हुक्मरानी कर चुका था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ना तो वो खाला को बता सकती थी और ना ही वो शख्स से उस बारे में कोई बात कर सकती थी। मेरा बेटा, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो गई? काफ़ी देर उसे खामोश बैठे देखने के बाद खाला उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। कुछ नहीं खाला जान, बस वैसे ही। ये अज़लान भाई हैं। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये वापस आ गए हैं। मैंने रात में इन्हें देखा तो चोर समझ बैठी। सॉरी खाला। इसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मालूम नहीं खाला इसके बारे में क्या सोच रही होंगी। और वो ये सोच सोच कर बेहाल हुई जा रही थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये बस कल ही आया था। तुम सो रही थी, मुझे बताए बगैर आया और सरप्राइज़ दिया है। कोई बात नहीं। तुम आज कह रही थी ना कि तुम्हें शॉपिंग पर जाना है। मुझे तो किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना है, तो तुम ऐसा करना कि अज़लान के साथ चली जाना। अज़लान की चॉइस बहुत अच्छी है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से शॉपिंग करवा देगा। खाला ने कहा तो वो यकलख्त बोली, नहीं आंटी, मैं आपके साथ जाऊंगी। जब आपको वक्त हो मुझे आप ले जाइएगा। उसकी बात सुनकर खाला के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आ गई थी। कुछ देर उसे देखने के बाद उन्होंने अब की बार अज़लान की जानब देखा। अब क्या कहते हो अज़लान बेटा? वो उसकी जानब मुतवज्जा हुई तो अज़लान ने सर उठाकर पहले तो मीरब को देखा, फिर उसके बाद अपनी माँ की जानब देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से मुझे इन्हें शॉपिंग पर ले जाना चाहिए। ये मुझे चोर समझ चुकी हैं और मैं भी उनसे इनकी सोने की चेन चोरी होने के नाते मांग चुका हूँ चोर होने के नाते मांग चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से इनको मेरे साथ शॉपिंग पर जाना चाहिए ताकि इनकी ये सोने की चेन में बेचकर इन्हें शॉपिंग करवा सकूँ। वो जल्दी से अपने गले में पहनी सोने की चेन पर हाथ फेर कर उसे इतनी मजबूती से पकड़ गई कि यूँ लगा जैसे वो सच में आकर उसकी चेन पकड़ने के लिए आ रहा हो। और अभी के अभी इसके गले से उतार कर कहेगा, खबरदार अब दोबारा इस चेन का नाम मत लेना। उसकी बात पर खाला खुल खिलाकर हंस दी थी, जबकि वो शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई। वैसे अम्मी, आपने अपनी भांजी को अपने घर में ऐसे ही रखा हुआ है? बेचारी को सारा सारा दिन खाना नहीं मिलता। वो शरारत से कहता उसकी जानिब देख रहा था, जबकि हैरत से खुलती खाला की आंखें उसकी जानिब मुड़ी। अरे नहीं खाला, मैं तो बस आपने खुद ही कहा था कि किचन में जाकर खाना खा लूँ जब मुझे भूख लगे। उसने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा। यह सामने बैठा शख्स उसे यहाँ पर शर्मिंदा करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। एक दिन तुम अकेले में मिलो कमीने इंसान, तुम्हें देख लूँगी मैं। वो मुंह में ही बड़बड़ाई थी अज़लान की जानब देखकर, और अज़लान उसके होंठों की बड़बड़ाहट से पहचान गया था कि वो क्या कह रही है।
दूसरी तरफ खाला कहने लगीं, अरे हाँ, वो ये रात को खाना खाए बगैर सो गई थी, इसलिए मैंने इसे कह दिया था कि जब इसे भूख लगे जो किचन में जाकर खाना खा सकती है, लेकिन शोर मचाए बगैर, क्योंकि जब किचन में खटपट की आवाज़ होती है तो मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो ये उठकर खुद ही खाना खा लेगी, तो इसे बता दूँ कि खटपट ना करे और आराम से जाकर किचन में खाना खा ले। घर इसका अपना ही है, तुम पता नहीं इसे क्या समझ बैठे थे। आंटी ने उसकी साइड लेते हुए कहा तो वो मुस्कुराते हुए जैसे गर्दन झुकाकर बैठी थी, जबकि उसे शौक निगाहों से देखने वाला वो अज़लान अब उसके होठों की जानब नज़रें किए बैठा था। उसे उसकी नज़रें अपने ऊपर बिल्कुल तीर की मानद महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डाइनिंग टेबल से उठ जाए या नहीं। अगर वो खामखा उठ जाती तो खाला को बुरा लग जाता, और वो नहीं चाहती थी कि खाला को उसकी कोई भी बात बुरी लगे। उसकी ये खाला उसकी सहेलियों से ज़्यादा थी, और यही वजह थी कि छुट्टियां गुजारने के लिए वो खाला के घर आई हुई थी। हाँ, इससे पहले उसने इस खाला के घर का रुख नहीं किया था, सिर्फ फ़ोन पर ही बात हुआ करती थी, लेकिन इस बार उसकी अम्मी और खाला दोनों ने ही इसरार किया था कि वो इन छुट्टियों में खाला के घर पर ही रहे। उसने भी सोचा था कि चलो ज़रा आउटिंग हो जाएगी। उसे ये तो मालूम था कि खाला का एक बेटा है, लेकिन उसे ये मालूम था कि वो लंदन रहता है, और लंदन से वो आज ही वापस आएगा। जब वो आई तो उसने खाला जान से पूछा था कि आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा, तो खाला जान ने यही कहा था कि वो लंदन है और न जाने वो कितना अरसा रहेगा। उसके आने की अभी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो उनके घर में भटकती हुई रूह की तरह इधर से उधर घूमती रहती थी। कभी इधर से उधर जा रही थी तो कभी इधर से उधर। खाला के घर में आके उसे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। वो शौक चंचल लड़की अपनी दोस्त जैसी खाला के घर पहली दफ़ा आई थी और हर वक्त लंबी तान कर सोती थी। इस वक्त भी वो सो रही थी जब खाला ने उसे खाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं उठ पा रही थी, इसलिए खाला जान ने उसे कहा था कि बिरयानी बनी है, जब तुम्हें भूख लगे उठकर खा लेना, मैं खाना खाकर सोने जा रही हूँ। और उसने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी थी। फिर जब रात के 2 बजे उसे भूख लगी तो वो खाला की बात पर अमल करती हुई किचन में आ गई थी, और वहीं पर तो उसे अज़लान मिला था, और अब वो बात बात पर उसे शर्मिंदा कर रहा था। वो खामोशी से अब खाना खाने लगी थी। खाला जान ने उसे ताकीद कर दी थी कि वो खाना खाने के बाद तैयार होकर अज़लान के साथ शॉपिंग पर चली जाए, और वो इसके लिए खुद को तैयार कर रही थी, क्योंकि वो खाला जान की बात कभी नहीं टाल सकती थी। वैसे यकीन नहीं आता कि तुम पहले से इतनी खूबसूरत हो गई हो। वो गाड़ी में खामोशी से बैठी थी। उसे उस शख्स से शर्मिंदगी हो रही थी। वो दोनों उस वक्त शॉपिंग के लिए जा रहे थे। पता नहीं खाला जान को क्या पड़ी थी कि मुझे इस शख्स के साथ भेज दिया। इसे न जाने क्यों अज़लान से उलझन हो रही थी। उसे बाद में समझ आया था कि उसके साथ ऐसा मजाक करने वाला कोई और नहीं बल्कि अज़लान ही हो सकता है। उसे याद आया था कि 5 साल पहले जब कॉल पर उसकी बात हुई थी, अज़लान ने उसे काफ़ी तंग किया था। उसे इस तरह का तंग करने वाला सिर्फ वही तो हो सकता है। और उसने भी ये कहा था कि जब तुम पहली बार मेरे सामने आओगी तो अपनी खैर मनाना। ये कॉल पर इसलिए था क्योंकि वो कॉल पर खाला समझकर उसे ढेर सारी बातें कह गई थी, लेकिन जब आगे से अज़लान ने बात की तो वो उस पर जैसे फटी पड़ी थी, और वो अनापरस्त इंसानों से यूँ अपनी इंसल्ट करता पाकर उसे ये कहा गया था कि जब मेरे सामने आओगी तो अपनी खैर मनाना। लेकिन दूसरे ही दिनों से ये खुशखबरी मिली थी कि अज़लान अब हमेशा हमेशा के लिए लंदन चला गया है। वो पुरसकून हो गई थी, लेकिन फ़राग़त ही नहीं मिल रही थी कि वो खाला जान के घर जाकर रह पाती। खाला जान तो उसे न जाने कितने अरसे से कह रही थी कि आओ और मेरे घर पर रह लो। लेकिन वो थी कि खाला जान के घर ना जा पाती। तब 5 साल बाद जब अम्मी और खाला जान ने उसे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया, तो वो ये सोच कर के अब तो खाला जान का बेटा भी घर पर नहीं है। उसे याद भी नहीं था कि खाला जान का वो बेटा घर पर है या कहीं और। जब यहाँ आकर उसने पूछा था तो खाला जान ने कहा था, वो तो कब का लंदन जा चुका है और अभी उसके आने के कोई इम्कान नहीं है। वो फिर यहाँ पर दनदनाती फिर रही थी। उस रोज़ वो सारा दिन खाला जान के साथ बाहर पिकनिक पर थी। असर को लौटी तो थक हार कर अपने बिस्तर पर गिरी और फिर सो गई, और रात के वक्त खाला जान उसे ये ताकीद करती सोने चली गई थी कि जब भूख लगे तो उठकर खाना खा ले। और तभी वो किचन गई थी और उस शख्स ने उसे देखा तो फिर उसके साथ उसे ज़्यादा सोच ही ना पाई। वो उसकी बात पर खामोश रही। गले की चेन मुझे बहुत प्यारी लगी है, इसे मेरे हवाले कर दो। एक बार फिर से अपना बायां हाथ उसकी गर्दन में पहने हुए उस चेन की तरफ बढ़ा गया था। एक बार फिर से रात को वाक़या दोहराया जाने लगा। उसकी चेन से उसकी उंगलियां हटती हुई उसकी गर्दन और फिर गर्दन से नीचे तक का सफ़र करने लगी थी। प्लीज़ हाथ मत लगाएं मुझे, वो उसके हाथ को झटकते हुए बोली तो एकदम से वो गाड़ी रुक गया। एक झटके से गाड़ी रुकी और वो हैरत से उसकी जानिब मुड़ी। ये क्या बदतमीज़ी है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आना चाह रही थी। बहुत ही छिछोरी हरकतें करते हैं आप, ये कहते हुए वो खिड़की की तरफ हुई थी। जब वो ज़रा सा
खुलता हुआ उसके करीब हो बैठा था। उसने गाड़ी को लॉक कर दिया था। अब वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर भी नहीं निकल सकती थी। उस शख्स की मौजूदगी उसे कुफ़्फ़त में मुब्तला कर रही थी। प्लीज़ आप मुझसे दूर होकर बैठें। वो उसे दूर रहने का इशारा करते हुए गाड़ी के दरवाजे की तरफ मज़ीद सकड़ती चली गई, लेकिन वो अब उसे बख्शने वाला नहीं था। उसने दूसरी बार उसका हाथ झटका था। ये कैसे हो सकता है? 5 साल बाद मैं यहाँ वापस आया हूँ, और वापस भी मैं किस इंसान के लिए आया हूँ। इस इंसान को देखना, छूना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका है, और वह शख्स ही मुझसे दूर है। ये मुझसे बर्दाश्त तो नहीं। ये कहता हुआ वो उसकी कमर से पकड़ता उसे बिल्कुल अपने करीब कर गया था। अब की बार उसका हाथ एक बार फिर से उसके गले में पड़ी, जिन पर आहिस्ता आहिस्ता फिसलने लगा था। उसकी ठंडी उंगलियां उसके गले का तवाफ कर रही थीं, और वो सांस रोके उस शख्स को दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। मैं अभी के अभी खाला जान को कॉल कर दूंगी। मैं कहूँगी कि उनका बेटा मेरे साथ क्या हरकतें कर रहा है। दूर हो जाए मुझसे। वो एकदम से चीखी थी, और वो उसे अपनी बाहों में भरकर उसे अपने सीने से लगा गया था। करो कॉल, वो कुछ नहीं कहेंगी, मैं गारंटी देता हूँ। और वैसे भी उन्होंने खुद ही मुझे तुम्हारे साथ भेजा है, ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ सुहानी याद बना लूँ, ताकि तुम्हें कुछ समझ सकूँ, तुम कुछ मुझे समझ सको, ताकि फिर शादी के बाद हम दोनों के दरमियान कोई तकरार ना होगी। मैं तुम्हें नहीं समझ सकता और तुम मुझे नहीं समझ सकती। वो कहता हुआ उसका चेहरा अपने करीब कर गया था। क्या मतलब? तुम कौन होते हो मुझे इस तरह से टच करने वाले, और मेरे साथ इस तरह की बेहुदा यादें बनाने वाले? उसे उस इंसान से कुफ़्फ़त महसूस हो रही थी। मैं कौन होता हूँ? शायद ये बात अभी तक तुम्हें किसी ने बताई नहीं। चलो बता देता हूँ मोहतरमा, शौहर हूँ मैं आपका, और ये मेरा हक़ है जो मैं तुमसे ले रहा हूँ। अगर ज़रा से तुम्हें छू रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं कुछ छू रहा हूँ। अरे अपनी बीवी को छू रहा हूँ, और क्या? और ये कहते हुए वो अपना होंठ अपने दाँत तले शरारत से दबा गया था, जबकि वो हैरत से मुंह खोले उस शख्स को देख रही थी, जिसकी सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। क्या मतलब है इस बात का? वो ज़रा सी दूर हुई तो फिर अज़लान ने भी अपनी गिरफ्त उस पर से ढीली कर दी। अब आई हो ना लाइन पर, आराम से बैठकर मेरे साथ आराम से जहाँ ले जाऊँ चली जाना। और रही बात निकाह की, तो निकाह तो हमारा बचपन में ही हो गया था, जब तुम मम्मा या फिर खाला जान से पूछ सकती हो। ऐसा नहीं हो सकता, वो चिल्लाई थी। ऐसा हो चुका है। उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था। वो हैरान हो रही थी। कुछ बाद वो एक इमारत के सामने रुके। ये एक बहुत बड़ा मॉल था। वो इसका हाथ पकड़ता उस मॉल में ले आया था, और पर हम दोनों कोई और शॉपिंग करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी शादी की शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। और जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। चनाचा मैंने मामा से बात कर ली थी, और वो ज्वेलरी देखने गए हुए हैं, और मैं और आप यहाँ पर सूट वगैरह की शॉपिंग कर रहे हैं। उसकी बात पर वो चली जा रही थी। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर कॉल मिलाई, लेकिन किसी ने उसकी कॉल नहीं उठाई थी। उसे ये सब कुछ झूठ लग रहा था, हत्ता कि अज़लान ने उसकी पसंद के रंग के तमाम सूट अपनी शेरवानी तक खरीद ली थी। वापसी पर भी वो परेशान रही थी। उसने अज़लान को अपने करीब नहीं आने दिया था, लेकिन जो कुछ सुन चुकी थी, ये उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी कैसे फ़िक्स की गई थी, वो हैरान हो रही थी। खैर वो दोनों जब वापस आए तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही थी। यहाँ पर खाला के साथ उसकी अम्मी जान भी मौजूद थी। वो इसलिए यहाँ आया था, उसकी माँ की तबीयत कुछ खराब रही थी, क्योंकि उसकी आंखों के नीचे हल्के और वो पहले से कमज़ोर लग रही थी। उसे खालाजान के घर आए हुए तकरीबन 3 हफ्ते होने वाले थे, और जब भी वो अपनी माँ को कॉल करती थी, उसकी माँ बस थोड़ी देर उससे बात करके कॉल काट देती थी। लेकिन उसे लग रहा था कि शायद अम्मी वैसे ही बाहर ना चाह रही होंगी, या फिर मसरूफ़ होंगी। ये सोचते हुए वो खामोश हो जाती थी। लेकिन अब अपनी माँ की आँखों के सामने यूँ इतना कमज़ोर पाकर वो हैरत से उसकी जाने पड़ी थी। अम्मी आपको क्या हुआ है, और आप यहाँ कैसे? वो हैरानगी से सब लोगों को देख रही थी। खालाजान क्या हुआ है अम्मी को, और ये अभी अज़लान क्या कह रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सब लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? उसे हैरत के झटके पर झटके लग रहे थे। तभी खालाजान आगे बढ़ी और कहने लगी, जो अज़लान कह रहा था वो सच था। इसलिए हमने अज़लान को तुम्हारे साथ भेजा, क्योंकि तुमने आज तक कभी किसी को मुँह तक नहीं लगाया, और वैसे अपने बचपन में तुम्हारा निकाह कर दिया था। जब तुम पैदा थी, तुम्हारे खालू ने कहा था कि तुम हमारी बहू बनोगी, और फिर जब तुम 10 साल की तो तुम्हारे बाबा बहुत हो गए थे। इसलिए वो चाहते थे कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की खुशी के दिन देखते जाएं। वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को एक मजबूत सहारे के देख जाएं, ताकि उनकी बेटी किसी मुश्किल में ना रहे। और दूसरी तरफ तुम्हारे खालू जान भी यही चाहते थे कि घर में कोई हल्ला गुला हो जाए। चनाचा तब तुम दोनों 10 साल की थी, और अज़लान 12 साल का। इसलिए अज़लान को तो सब याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। हमने तुम दोनों का निकाह कर दिया था, और फिर उसके बाद तुम्हारे बाबा यहाँ ज़िंदगी और मौत की जंग हार गए और खुदा से जा मिले। कुछ अरसे बाद तुम्हारे जान भी चले गए। तो इस वजह से ना तो ज़्यादा मैं आ सकती थी तुम्हारे घर, और ना ही तुम लोग आ सकते थे। तुम्हारी अम्मी कभी कभी मेरे घर चक्कर लगा लेती थी,
लेकिन इतना वक्त इनके पास ही बचता था और जहाँ पर मैं भी बहुत मसरूफ़ हो गई थी। इस वजह से हम दोनों बस उन तक ही महदूद रहीं। दूसरी बात ये थी कि शहर भी अलग अलग थे और फिर इसके बाद अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत दिन दिन ख़राब होने जा रही थी। और इस वक्त जब तुम्हें कॉलेज की छुट्टियां मिली तो तुम्हारी अम्मी ने साथ ये डिस्कस किया था कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊं ताकि तुम्हें सेटल होने में ज़्यादा वक्त ना लगे। तुम्हारी अम्मी को डॉक्टर ने बस कुछ दिन बताए हैं। वो चाहती है कि वो अपनी आँख से तुम्हारी खुशी दी जाए। इसलिए मैंने अज़लान को इतला दी तो ये भी वापस आ गया और हम तुम शादी करना चाहते हैं। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इस वजह से हम चाहते हैं कि आज ही रुखसती हो जाए। इस पर तो जैसे हैरतों के पहाड़ टूटे थे। अपनी माँ की बीमारी का सुनकर तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अम्मी, ये मैं ख्वाब सुन रही हूँ कि सच में आपकी तबीयत ख़राब है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो रोते हुए उनका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, बेटा ये सब कुछ सच है। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं चाहती थी। मैं जानती थी कि अगर मैं तुम्हें वैसे ही कहती तो तुम ना मानती। बेटा मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले मैं तुम्हारे हाथ पीले कर दूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। खाला ने उसे सीने से लगाया और फिर कहने लगी, बेटा ये वक्त सब्र का है और डॉक्टर ने कहा है कि इनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए। अगर तुम अपनी माँ की ज़िंदगी चाहती हो तो फिर हाँ कर दो ताकि ये कुछ दिन और हमारे साथ जी सके। उसने एक अपने सामने खड़े अज़लान की जानिब देखा। यह शख्स इतना भी बुरा नहीं जितना उसे लगता था। और फिर बचपन से उसके साथ निकाह भी हो चुका था और उसकी 20 साल ज़िंदगी में उसे पहली मर्तबा किसी इंसान ने छुआ था और वो इंसान भी अज़लान था। आखिरकार उसने इस बात पर हाँ में सर हिला दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। रज़िया बेगम ने उसे उसका माथा चूमकर सीने से लगा लिया था। उसके बाद अल्लाह उनसे लेता हुआ कलर चला गया। शाम वक्त उन दोनों की रुखसती थी। ख़ानदान के कुछ लोगों को पहले ही इनवाइट किया गया था। ये तो वो सब कुछ नहीं जानती थी। वलीमे के बाद उसे उसके में छोड़ दिया गया और वो दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि मीरा को कुछ समझ ही नहीं आई थी। इतनी जल्दी में कमरा भी बहुत खूबसूरत से सजा गया था। गुलाब की पत्तियां हुई थी और गुलाब के ताज़ा फूलों से सेज बनाई गई। गुलाब की खुशबू सारे कमरे में फैली थी और कैंडल लाइट चल रही थी। अज़लान को अपने साथ सोचकर वो पहली बार मुस्कुरा रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला। वो सही होकर बैठ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया। देर बैठकर उसे देखने के बाद उसका घट पलटा और फिर उसे देखता ही रह गया। मैं नहीं जानता था कि कोई गुस्से की दुकान इतनी हसीन भी हो सकती। वो शरारत से कह रहा था जबकि वो भी हल्की सी मुस्कुराहट लिए आई एम सॉरी कहती झुका गई थी और उसका यूं नज़रें झुकाना उसे मज़ीद सुलगा गया था। वो जल्द आगे बढ़ता हुआ उस करीब हुआ था। अब तो ये सोने की चेन और सोने की चेन वाली गर्दन भी होगी ना। उसकी गर्दन में पहनी सोने की चेन पर उड़ता हुआ कह रहा था। अब कि मैंने उसका हाथ नहीं झटका था। मुस्कुरा कर रह गई थी और वो आगे बढ़ता उस चेन को अपने मुंह में ले आहिस्तगी से उसे दूर हटाता उसकी गर्दन पर झुकता गया था। उसका इस वालेहाना मुहार मीरब को अपने हिसार में ले चुका था। मेरी खामोशी से अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया था। वो खुश थी कि उसकी माँ की ख्वाहिश पूरी हो चुकी। दूसरी तरफ वो यूँ थी कि उसे अज़ल सा शख्स मिल चुका था। उसकी ज़िंदगी की मोहब्बत की छोटी सी दास्तान बस अज़लान और उसके कमरे तक ख़त्म हो गई थी। दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और फिर लम्हा लम्हा पर हावी होते अज़लान को उसने प्यार से देखा था। आज वो उसे हल्किया से खारिज नहीं करना चाहती थी और भी ठीक थी कि यह सब उसे अच्छा लग रहा था। उनके कमरे में कोने में खड़ी मोहब्बत मुस्कुराकर रश्क नज़रों से उन्हें देख रही थी। इस मोहब्बत पर फिर से दो दिलों को मिला दिया था।